Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again. This lecture is going to be specifically for the explanation of accounting for not-for-profit organization, and in that the concept of fund. कि जब भी आपको फंड आता है, ओके, वो स्पोर्ट्स फंड होगा, टूर्नामेंट फंड होगा, लाइब्रेरी फंड होगा, बिल्डिंग फंड होगा, ओके, उसको हैंडल किस तरह करना है. देयर हैव बीन maybe 1 or 2 lectures which I have conducted prior to this also to explain to you the same concept, but because your paper is of such variety that there is a possibility of a 1 mark question or a possibility of a 2, 3, 4 or maybe a 6 or an 8 mark question. There are so many possibilities. So ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, which let me very quickly put it up on display, कि फंड को एग्जाम्पल कौन सा फंड, इट कैन बी एनी फंड. फंड का मतलब है कि पैसे अलग रखे गए हैं, ये पैसों का इस्तेमाल एक ही काम के लिए, एक ही एक्टिविटी के लिए होने वाला है. एग्जाम्पल, इफ इट इज़ अ न्यू बिल्डिंग फंड, तो इट्स ऑब्वियस विद द नेम दैट इट सेज कि जब नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, जो पैसे इसमें रखे हैं वो इस्तेमाल होंगे. बट ऑब्वियसली यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया दैट बाइंग वन हाउस, एक घर, एक फ्लैट खरीदना वही महंगा होता है, तो एक पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना इज गोइंग टू बी अ लॉट कॉस्टली एंड इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ फंड्स, मनी. तो एक दिन में ये फंड में पूरा पैसा नहीं आता, ओके, बिकॉज दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ये थोड़ी कोई प्रोडक्ट बेच के पैसा जमा करते हैं. इनफैक्ट काफ़ी बार इन लोगों को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, ये फंड में पैसा लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इनको कुछ एंटरटेनमेंट शोज़ रखने पड़ते हैं, इनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से, खास करके फिल्म पर्सनैलिटी से. ओके, कैन यू प्लीज़ कम एंड परफॉर्म. हमने एक दिन पे एक शो रखा है, आप आके अगर एक गाना आपका गा के चले जाओगे, ओके, तो उतनी पब्लिक वहाँ पर आ जाएगी, उतने हमारे टिकट्स बिक सकते हैं और उतना डोनेशन हमको मिल सकता है. ओके, इट्स ऑल फॉर अ गुड कॉज, डेफिनेटली सो. ओके, सो लिटिल बाय लिटिल मनी गेट्स कलेक्टेड इन सच फंड्स, बट बिकॉज जब तक वो कंस्ट्रक्शन या जब तक जिस काम के लिए ये फंड में पैसा जमा हो रहा है वो यूज़ ना हो, तब तक ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है. मोस्ट प्रोबेबली कोई सेफ जगह पर, जो बैंक हो सकता है, ओके, या कोई भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. ओके, फंड में आने वाले समय में
अगर कहाँ से भी पैसा आएगा तो वो फंड में आप ऐड कर लो, बिकॉज दैट इंक्रीजेस द फंड। बट अगर कोई रीज़न की वजह से वो फंड का पैसा कम होगा तो आप उसको माइनस कर लो। ओके, नाउ इट डज हैपन दैट ऑन वेरी रेयर ओकेशन कि जो फंड में पैसा है वो नेगेटिव हो जाता है। दैट मीन्स टू से आपने जमा किया था 100 रुपीज़, खर्चा हो गया 105, तो 5 रुपया तो नेगेटिव हो गया ना। नाउ दैट नेगेटिव अमाउंट ऑब्वियसली वो ये फंड से तो नहीं हो पाया है, तो वो खर्चा कहाँ से हुआ। टू क्लैरिफाई दैट और टू राइट दैट नेगेटिव अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, -5 तो नहीं लिख सकते। टू मेक दैट इनटू अ पॉजिटिव अमाउंट, जस्ट दैट नेगेटिव पार्ट इज रिटन एज एन एक्सपेंस ऑन द expenditure side. I repeat myself, normally in this particular chapter anything connected to a fund should be related to the fund. It can either be a plus or a minus. अगर वो लास्ट का आंसर नेगेटिव आता है, only that negative part, okay, because you are not supposed to be writing negative numbers. To make it positive, उसको आप एक्सपेंडिचर साइड पे लिख सकते हो। ड्यूरिंग योर कंप्लीट प्रॉब्लम दिस सिचुएशन मे डेफिनेटली अकर। टुडे वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन, अगर ये क्वेश्चन का नाम, काम, जन्म भूमि कहाँ पर है टेक्स्ट बुक में आपको जानना है, टाइटल में ये दिया गया है। ओके, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन given in respect of certain items of a sports club. Show these items in the income and expenditure account, which we will do, and the balance sheet of the club. Balance sheet में maximum presentation, in income and expenditure account if the balance becomes negative then we will write it. Right now दिया क्या है, the first line, sports fund as on 1st April, so that is opening fund, we will write on the liability side. Sports fund investment on the asset side. Interest on sports fund, so this is an income, ये fund में add होगा तो we will do plus. Donation for sports fund investment, so जो donation आया है, जो दान दक्षिणा आया है वो specifically sports fund के लिए आया है, तो हम लोग उसको नॉट इन इन्वेस्टमेंट, प्लीज नोट, नॉट इन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, सारा तामझाम जो होता है वो स्पोर्ट्स फंड में होता है, इन दैट रिलेटेड फंड। हाँ, तो ये भी इनकम है प्लस। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, व्हेन यू आर अवॉइडिंग स्पोर्ट्स प्राइजेस, सर्टिफिकेट्स, मेडल, ट्रॉफीज, तो खर्चा होगा ना, तो ये माइनस है। एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये भी माइनस है बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। General fund, abhi this has no connection with sports fund, so it's a different fund. Okay, so I repeat myself, just like if you wear a pant there are different pockets. Okay, especially अगर कोई फोटोग्राफर है ना तो उनके पैंट्स में तो कुछ ज़्यादा ही पॉकेट्स रहते हैं, बिकॉज दे हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कनेक्टेड टू देयर कैमराज। ओके, किसी में छोटा लेंस रहेगा, किसी में किसी तरह का स्टैंड रहेगा, तो सब ये पॉकेट में वो डाल के रखते हैं। तो वो बेसिकली पॉकेट्स क्या है, अलग अलग जगह जहाँ पे चीज़ें स्टोर की जाती है। सिमिलरली डिफरेंट फंड्स के लिए डिफरेंट जगह होता है, तो इसके लिए स्पोर्ट्स फंड अलग है, जनरल फंड अलग है। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट वो एसेट साइड पे आ जाएगा। सो इन वन बैलेंस शीट यू कैन हैव मल्टीपल फंड्स एंड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये जनरल फंड में आप ऐड करो। That's pretty much it. You are not going to be solving and you are not required to solve an entire problem. Just show the presentation for this. Right now we start with the sports fund. Where do we place it? Liability side पे. Okay, so that is, you just have to show the presentation. तो आपको पूरा बैलेंस शीट से ड्रॉ करके टैली करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि वो टैली होगा भी नहीं। स्पोर्ट्स फंड में पैसा कितना था, 35,000, एंड द वेरी नेक्स्ट लाइन वाज उसी का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो पैसा तभी के तभी यूज नहीं होता है। सो द इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो 35,000। नाउ दैट आई रोट इन द आउटर कॉलम, क्योंकि उसके लिए उसके बाद उसमें कोई हमको एडिशन डिडक्शन नहीं करना। स्पोर्ट्स फंड में डेफिनेटली हमको करना है। एंड इफ यू लुक एट दैट, द थर्ड लाइन सेज
इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, इट इज एन इनकम, ऐड करो. एंड द फोर्थ लाइन सेज डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो भी एक इनकम है. जितना भी इनकम है अप डाउन ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इनकम रहेगा तो प्लस जरूर करना. सो फर्स्ट वाज द इंटरेस्ट पार्ट जो मैं ऐड कर रहा हूँ. 4,000 ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली इट इज 39,000. ओके, यू कैन टुगेदर प्लस एंड माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने इसको स्टेप वाइज किया है. डोनेशन को आप फिर प्लस कर लीजिए क्योंकि वो अलग रीजन है इनकम का, उससे स्पोर्ट्स फंड इंक्रीज होता है. कोई भी फंड इंक्रीज होगा. 15,000, 54,000. दीज व इनकम के बहाने. अभी एक्सपेंस के दो बहाने दिए हैं. एक है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड एंड द नेक्स्ट इज expenses on sports events. So a sports fund is not just a cricket fund or a badminton fund or a table tennis fund or a carom fund. Different sports are going to be played, they are going to be organized. सस्ता नहीं होता है. ओके, पैसे खर्चे करने पड़ते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑब्वियसली वो माइनस होगा किसी ना किसी के जेब से, तो वो आएगा ही आएगा. तो पहला था प्राइजेस अवॉर्डेड, बिकॉज इफ यू कंडक्ट अ टूर्नामेंट और उसका फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज नहीं होगा, सो प्राइज इज लाइक एन इंसेंटिव. ओके, इट इज अ पुश फॉर होम, द पार्टिसिपेंट्स एंड द टीम्स के फर्स्ट प्राइज पे अगर आप आओगे ये अवार्ड मिलेगा. सो कुछ लोगों के लिए द मनी डज नॉट मैटर, इट इज कि भाई अपनी टीम फर्स्ट प्राइज लेकर आइए, तो उनके लिए वो जो मेडल होता है ना, वो जो ट्रॉफी होती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज दैट इज दे टेक प्राइड in the performance that they give in the various sporting activities. हाँ, फिर कोई एक्सपेंस है वो माइनस कर लो, वो भी हम माइनस कर रहे हैं. ओके, इसके बाद स्पोर्ट्स फंड का कोई तामझाम नहीं था तो वो खत्म हो जाएगा. 40,000. बट वी डिड हैव अ जनरल फंड, अभी वो अलग कहानी थी. तो जनरल फंड का और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इफ यू सी जस्ट अबाउट मी, इट इज 80,000. तो वो लिख लेते हैं अलग से. सो 80,000 ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड जस्ट मेरी तरफ आ जाएगा जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000. इसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं करना, बट यू डिड हैव इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऐड कर लेना जनरल फंड में. एंड उसके बाद में उसका कोई उन्होंने स्टोरी आगे नहीं दिया था, तो ऐड करके आउटर कॉलम. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. ओके, एंड देयर आर गोइंग टू बी लेक्चर्स इसके पहले और इसके बाद, जो आपको एक दो और एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक से मैं आपको पढ़ा के दूंगा, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल इन हैंडलिंग स्पोर्ट्स फंड और टूर्नामेंट फंड और कंप्यूटर लाइब्रेरी फंड, एनी फंड, ओके, विल बी एट अ हायर लेवल. आई होप that everything that I've done behind me as far as this particular question as well as the explanation is concerned is understood by you. अगर आपको explanation समझ में आ गया तो कृपया करके लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए. सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है, दोनों काम आप कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा मिलती रहे कि हमारे इस चैनल के ऊपर ऑन व्हाट डे which particular lecture is going to be premiered. Okay, also fortunately the community tab is available for us, so if there is any messaging, any update that we can give to you about the upcoming lectures, the subjects, we will do our best कि वो community tab में हम post आगे से करें. टेलीग्राम हमेशा अवेलेबल होता है क्योंकि PDF टेलीग्राम के द्वारा ही क्वेश्चन आंसर्स का चैप्टर खत्म होने के बाद में शेयर किया जाएगा. ओके, अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई सुझाव हमें देने हैं या कोई डाउट आपको पूछने हैं, आप वो डेफिनेटली हमारे साथ में कर सकते हो. टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का और अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, गुड, गॉड ब्लेस. ओके, बाय फॉर नाउ.